Now let's go for question number 18. What do we have? I equals to integral 1 upon square root of sin cube x into sin x plus alpha dx. Now see, first thing, we cannot take something out of this right now. हाँ, यहाँ से sin x निकाल सकते हैं and it may be helpful, but later on उसे देखेंगे. उससे पहले यहाँ पे एक ही चीज हमारे पास पॉसिबल है, which is sin a plus b की फॉर्मूला. करेक्ट. So if I went for that particular formula, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? So it is going to be a quite big term, isn't it? Sin x, sin cube x into sin x cos alpha plus cos x sin alpha, and let me say dx. And if I multiply this sin cube x inside this bracket, so it will become sin raised to 4x cos alpha plus this will become cos x into sin alpha into sin cube x, because it is not related with anything, क्योंकि यहाँ पे sin x तो है नहीं कि sin raised to 4x ऐसा कुछ हो जाए. So cos x into sin cube x में जनरेट होगा. Now if you look at this term, as I told you कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो same way what I am going to do is I am going to take sin raised to 4x outside. If I take in it outside from the square root, तो बाहर आके हो जाएगा sin square x, and inside I am left with cos alpha plus. Now we have sin cube, but I took sin raised to 4, so one more sign I have taken out. So divide by sin करना पड़ेगा. So cos by sin cot x into sin alpha. Simple. Then 1 upon sin square x will be cos x square x dx divided by square root of cos alpha plus cot x into sin alpha. Now looking at this expression, हमें इतना थोड़ा सा रिकॉल होता है कि cot x का डेरिवेटिव cos x square x माइनस cos x square x, but doesn't matter, ऐसा कुछ होता है. लेकिन साथ में cot के साथ sin alpha है. sin alpha is a constant, so it won't affect the term. साथ में cos alpha भी constant, तो वो भी आपकी टर्म को इतनी अफेक्ट नहीं करेगी. So let me say कि let cos alpha plus cot x into sin alpha equals to t. Correct. So what can be converted from out of this? तो ये cot का हो जाएगा cos x square x into sin alpha dx equals to dt. That means cos x square x dx will be dt by sin alpha. Correct. Minus dt actually. So this will be converted like this. Instead of cos square x dx, it will be minus dt by sin alpha and whole divided by square root of t, because this is simply square root of t. Sin alpha is a constant, so minus 1 upon sin alpha outside, square root of t यानी कि t raised to minus 1 by 2 dt. Now I guess you people can do further from here. Correct. I am not going to simplify this for you, isn't it? t की power minus में है, so we'll increase 1 divided by minus 1 by 2 plus 1. Then we'll substitute t back again with this particular value and we'll get our answer. Correct. So hints and solution. Correct. I'll try to give you little bit of hints. I'll try to give you the solution to some extent, and at the end you will be going to integrate it as far as possible. Correct. Let's have a look at 19th one. Integral sin inverse root x minus cos inverse root x divided by sin inverse root x plus cos inverse root x dx. सबसे पहला जो हमें पता है वो, so we know that, what do we know, that sin inverse x या root x plus cos inverse root x, it will become pi by 2. Correct. So we can do two things in this particular integral. Can I write instead of this sin inverse x, pi by 2 minus cos inverse square root of x minus square root of cos inverse square root of x divided by pi by 2 dx. So pi by 2 यानी 2 by pi constant outside. Simple. This will become pi by 2 minus 2 times cos inverse root x dx. Now you may be thinking, how are we supposed to do this kind of a problem? तो देखो, होना बहुत सिंपल है. Some of you may be also getting the idea कि हाँ, ऐसा करने से अब ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. एंड डेफिनेटली इफ एनी वन ऑफ यू और मेनी ऑफ यू मे बी थिंकिंग कि भाई हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर सोचे तो हो सकता है, देन यू पीपल आर वेरी मच करेक्ट. सबसे पहले स्प्लिट कर दो.
सो 2/π इंटू π/2 कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ 1 dx स्प्लिट कर दिया, यानी कि इंटीग्रल सेपरेट कर दिए 1 dx माइनस 2 टू 4/π एंड इंटीग्रल ऑफ cos इनवर्स रूट x dx. करेक्ट. नाउ व्हेन यू लुक एट दिस पर्टिकुलर टर्म, 1 का इंटीग्रल तो चलो x हो जाएगा, यहाँ पे 2/π सब कट हो गया, 2/π एंड 1 का इंटीग्रल x माइनस 4/π cos इनवर्स रूट x dx. ना यू मे बी थिंकिंग कि चलो डायरेक्टली इसी में हम लोग कर ले, है ना. तो यू कैन ट्राई, अगर आपसे हो सकता हो तो आई कैन रिकमेंडेड यू टू ट्राई, बट इट विल बी बिग डिफिकल्ट. सो बेटर है कि हम क्या करें कि भाई हम ऐसा बोल दे कि लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी. क्या कहते थे? रूट एक्स इक्वल्स टू टी. अगर हमने रूट एक्स को टी कहा, इसका मतलब होता है 1/2 रूट एक्स dx इक्वल्स टू dt. अगेन रूट एक्स इज t, तो dx विल बी 2t dt. सो लेट मी से कि ये इंटीग्रल के लिए क्या होगा, तो कि x माइनस 4/π. अब इसको पूरा ब्रैकेट में डील करेंगे. सो इंटीग्रल cos इनवर्स t इंटू t dt. एक्चुअली 2 टाइम्स है ऐसे. करेक्ट. इफ यू वांट यू कैन कीप टेक दिस आउट एज अ सेपरेट वन एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई. इट डजंट मैटर, इतना कोई ज्यादा फर्क है नहीं, कुछ ज्यादा लिखना भी नहीं है. 4/π है आगे. I can take 2 common, so let me say it is 4 to the 8 and I got cos inverse t into t. I can now apply the formula. This is first function, second function, cos inverse t as it is, integral of t dt minus d by dt of cos inverse t. और आगे जाएंगे तो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ t dt कर्ली ब्रैकेट क्लोज dt और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x माइनस 8/π cos इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल cos इनवर्स t का डेरिवेटिव माइनस 1/1 माइनस टी स्क्वायर. दिस इज 1 ओवर हियर और ये टी स्क्वायर बाई 2 dt. आई कैन टेक 2 समथिंग लाइक दिस कॉमन, बाहर ले सकते हैं, कोई इतनी डिफिकल्टी है नहीं हमारे लिए वो. करेक्ट. सो लेट मी क्लोज दिस ऑल्सो. x minus 8/π, this will be cos inverse t into t square by 2 minus minus I guess it becomes plus and I can take 1/2 outside and it becomes integral of t square upon square root of 1 minus t square dt. Can you do this? डेफिनेटली. देखो हमने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए, दैट्स वेयर द कांसेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट. हम जब सिंपल छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यू मे सम टाइम हर्ड फ्रॉम सम टीचर्स के ऐसे क्वेश्चंस कभी पूछते नहीं. व्हाट डज दे ट्राई टू टेल यू इज कि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं होते बट इनडायरेक्टली दे आर नीडेड. करेक्ट. वो हमें कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं. सो दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. cos इनवर्स t square by 2 1/2. And now the final step I am doing, I am just going to tell you do this 1 minus t square plus 1. Now you may be thinking, अरे ये तो सब प्लस में ही आ गया, ये 1 तो कट ही नहीं हुआ. अरे बाप रे, अब ऐसा नहीं कर सकते, है ना. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कि यहां से माइनस उठा लेते हैं and I'll keep this minus, so it becomes minus t square. Why I kept minus t? Denominator में 1 minus t square है and I'll add 1 and subtract 1. डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt. करेक्ट. नाउ जैसे ही आपको ये मिला, आप स्प्लिट करो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट वाला माइनस 1 अपॉन रूट. तो वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला, यहाँ पे पहले रूट कट हो जाएगा और रूट वाली फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगी. इन वी अंडरस्टूड इन सम मोर टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स में. करेक्ट. सो वहां से आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हो. लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग विल बी कि जैसे ही आपका पूरा इंटीग्रेट हो जाता है ना, उसके बाद यू नीड टू मेक श्योर दैट यू शुड रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t इन टर्म्स ऑफ x. वो लिखना भूलना मत, बिकॉज इफ यू फॉरगेट दैट ना, यू लॉस्ट योर हाफ मार्क्स एंड इट इज नॉट गुड कि हम अननेसेसरीली इतनी सिंपल सी चीजों में अपने मार्क्स को घुमा दें. इजंट इट? सो मेक श्योर दैट कि आप जब भी ऐसा कुछ करो तो बैक सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखने की ट्राई करना. एम आई क्लियर?
चलो देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये कौन सा किया हमने? आई गेस इट वाज 19th वन एज फार एज आई एम कंसर्न. देख लेते हैं कौन सा किया टेक्स्ट बुक के अंदर. या इट वाज 19th. नाउ लेट्स गो फॉर 20. I equals to integral square root of 1 minus square root of x divided by 1 plus square root of x dx. Now ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमें 4-4 मार्क में बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं. करेक्ट. सो हाउ आर वी सपोज टू डू दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम? तो एक सिंपल सा लेट करना है आपको कि लेट x इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा. क्या लेट किया? cos स्क्वायर थीटा. देखो cos है ना, इसीलिए थीटा अप्रोच किया, t नहीं लिया, क्योंकि cos t जनरली हम प्रीफर नहीं करते, एंगल के हिसाब से थीटा लेते हैं. तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू 2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा. सो आई हो गया स्क्वायर रूट में 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा एंड माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा डी थीटा. करेक्ट. अब ये जो 2 cos थीटा साइन थीटा डी थीटा है उसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन ये कोई फॉर्मूला आपको रिकॉल हो रही है? 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा कुछ समथिंग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर cos मतलब साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर. सो लेट मी डायरेक्टली राइट कि ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू माइनस 2 cos थीटा एंड साइन थीटा डी थीटा. फर्दर अगर आप देखो तो ये हो जाएगा सिंपली 10 और 10 का मतलब होता है साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 इंटू लेट मी टेक दिस माइनस 2 आउटसाइड इंटू cos थीटा और साइन थीटा के लिए वापस से हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डी थीटा. सो आई कैन कैंसल आउट दिस cos थीटा बाई 2. ये माइनस 2 2 जा 4 साइन थीटा बाई 2 हो गया, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. लेकिन ये cos थीटा का क्या करें? वी नीड टू डू समथिंग ऑफ अ cos थीटा जिससे हम हमारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाए. व्हाट कैन वी डू? है ना. तो cos थीटा के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है लाइक 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो आप वो यूटिलाइज कर सकते हो. लेट मी से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा. करेक्ट. लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट टू बी फॉर अस. हम देखते हैं कि ये हमारे लिए किस तरह से टर्न आउट होती है, वेदर वी शुड गो फॉर लाइक दिस और नॉट. हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, है ना. चलो देखते हैं. अगर मान लो इससे आगे बढ़े तो विल गेट वन टर्म 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और दूसरी टर्म 2 2 जा 4 साइन रेज़ टू 4. ना आई गेस इट विल बी बिट डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट टू द सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि साइन रेज़ टू 4 सॉल्व करना है ना, थोड़ा सा हमारे लिए हेक्टिक हो जाएगा, लाइक इट विल बी बिट डिफिकल्ट. तो एक काम करते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 डी थीटा. व्हाई आई डिड दिस आई विल शो यू. जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा सो व्हाट आई विल गेट 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ये दे देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये डी थीटा. करेक्ट. कहीं कोई थीटा मिस नहीं हो गया हो, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, है ना. मतलब कोई कुछ कट वट होना रह ना जाए हमारा, बाकी ऐसे तो हम बराबर चल रहे. सो माइनस 4 इंटीग्रल. नाउ इफ यू लुक एट दिस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, कैन आई राइट इन द ब्रैकेट 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर एंड 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 विल बिकम साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस what can we do about that 2 sin square theta by 2. और 2 sin square theta by 2 का क्या कर सकते हैं? तो कि भाई चलो उसको तो एज इट इज रहने देते हैं और एक काम करते हैं, साथ ही में ना इसको सेपरेट कर लेते हैं. ये डी थीटा माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. क्योंकि इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वी कैन गो फॉर समथिंग. साइन स्क्वायर के लिए 1 माइनस cos थीटा. करेक्ट. साइन स्क्वायर थीटा के लिए भी करना तो वही पड़ेगा, बस यहाँ थीटा यहाँ थीटा बाई 2 है. साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा प्लस 8 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस
cos थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, करेक्ट, -4 ये 1/2 माइनस कॉस। वाई शुड वी वेस्ट टाइम लाइक दिस, है ना। अब टाइम वेस्ट करना प्रीफर नहीं करेंगे, 2 कट होके -2 हो गया, 1 का इंटीग्रल थीटा कॉस का साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस 8/2 मतलब 4, 1 का थीटा और कॉस थीटा का साइन थीटा प्लस सी। सिंपल। अब थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो एक आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क रहेगा, करेक्ट। सो -2 थीटा की जगह पे क्या आएगा, तो इफ यू लुक एट दिस वन, तो पहले तो cos स्क्वायर थीटा है, तो cos थीटा होगा रूट एक्स और थीटा हो जाएगा cos इनवर्स रूट एक्स। थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स रूट एक्स माइनस, अब यहाँ साइन 2 थीटा है, तो आप देखो तो ऐसे लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 कट हो जाएगा, बट ये 2 फिर भी आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2, cos थीटा होगा रूट एक्स और साइन थीटा होगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एम आई राइट, या 1 माइनस एक्स कितना होगा, 1 माइनस एक्स। अरे सीधी सी बात है ना, cos स्क्वायर थीटा रूट एक्स है, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा क्या होगा, आप चेंज कर लो तो आपको पता चल जाएगा, इट विल बी रूट में 1 माइनस एक्स प्लस 4, अगेन थीटा इज cos इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन थीटा इज 4 times 1 minus x plus c. This could be your answer. Minus 2 times root 1 minus x plus cos inverse x. Okay, कहीं पे कोई हमारा 2 या ऐसा कुछ ज्यादा हो गया दिख रहा है मुझे, है ना। So we have -4 till here. साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बाहर 2 नहीं है, ये 2 हमने यहाँ पे लगाया, आया हमें यहाँ से मिला एक्चुअली, हाँ, तो वो डेफिनेट है कि यहाँ से 2 मिलेगा, तभी ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हुआ। ओके, देयर में भी कोई तो एक 2 की वैल्यू की हमने ज्यादा इसमें वो कर दिया है, करेक्ट। cos स्क्वायर थीटा का 2 cos थीटा साइन थीटा, दैट इज करेक्ट, साइन 2 थीटा, 2 बाहर आया बराबर 2 साइन थीटा बाई 2, 2 ये रहा, 2 बाहर आया, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अच्छा, ये 2 और ये 2 बाहर 4 तो हो चुका है, तो ये 2 थोड़ी ना आएगा, दैट्स स्मॉल मिस्टेक। तो वो 2 नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी थोड़ी ना होगा, बट ये वाला 2 से मिलेगा, सो दिस विल बी 2 टाइम्स माइनस सिंगल, है ना, यानी कि ये 4 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा, 4/2 यानी कि 2 थीटा इंटू 2 टाइम्स रूट 1 माइनस एक्स। एक और जगह पे थोड़ा चेंजेस करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 4 चाहिए और यहाँ पे हमने उसको ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर लिया है, तो इसको हम 2 बोल देंगे, यहाँ पे भी 2 आएगा, दिस 2 विल गेट कैंसल, सो देयर इज नथिंग लेफ्ट आउटसाइड, नो 2 हियर, नो 2 हियर, करेक्ट। सो योर फाइनल आंसर इज माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 2 माइनस 1 प्लस 1 कर लेते हैं, -2 टाइम्स रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, -2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, करेक्ट। आई नो कि थोड़ा सा यहाँ पे वो 2 का आई डोंट नो क्या हुआ, मैंने कॉमन निकाल लिया फिर भी यहाँ पे 2 लिखा, और मैंने बीच में बोला भी कि देखो कहीं पे कोई नंबर या मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी इधर उधर हो गई लग रहा है मेरे को, बट दैट्स ओके, एज ऑफ आई एम ऑल्सो ह्यूमन, सो आई ऑल्सो बाउंड टू कमिट मिस्टेक समटाइम्स, सो इट्स ओके, है ना। सो दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी सॉल्व, सो आई गेस यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, 21 and 22 I have written on the board, so we'll see, simple, both of the problems are correct. So how are we supposed to do this? So can I write this as 2 sin x cos x, and this will be 2 cos square x e raised to x dx. देखो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विच कैन बी आस्क्ड इन MCQ, तो आराम से हो जाएगा। इंटीग्रल 2 कॉमन, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे बचा है cos square x e raised to x dx।
and if I take reverse LCM तो it will become sec square x 1 upon cos square, एक cos cut sin by cos 10x, correct. And if you remember the formula integral of e raised to x into f of x plus f dash x dx क्या हो जाता है e raised to x into f of x plus c, so e raised to x 10x plus c will be the answer. But you just need to show you just need to show that कि हाँ ये आपका फंक्शन f of x है और ये उसका डेरिवेटिव है, and then you can just simply use the formula and get the answer, correct. Now even if you look at the question number 22, तो देख के आपको इजीली आइडिया आ ही गया होगा कि इट इज टू बी डन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. कैसे? तो कि भाई हम क्या करेंगे, तो कि हम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 स्क्वायर इंटू x प्लस 2. So it will be a upon x plus 1, b upon x plus 1 whole square plus c upon x plus 2. So there will be only 3. Now here I can see that it's a square. So I have to take first x plus 1 and then x plus 1 whole square. Simply I will take LCM, I will get the coefficients if you want. If you don't want to go by coefficient, then you can put value of x equals to -1, then x equals to -2. And if one of the unknown is only left, then you can go for x equals to 0. Why? Because already you got to know two values. X equals to 0 ले लो. If there are some unknowns left, a b c में से कोई ज्यादा आ रहे एक से, तो you can put that value as you can already obtain. So we can easily get this kind of problem done. So I don't think so कि मुझे इस तरह के प्रॉब्लम में अब कोई भी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है, isn't it? It's simple a problem of a partial fraction method, and I believe that most of you are able to do this. Let's have a look at 23. Why I wrote here instead of this side? Because I am also giving this u as mostly done by yourself. Why? So we just did something like this, 1 minus square root of x upon 1 plus square root of x. So we let x equals to cos square theta. Here you just need to let x equals to cos theta, जिससे I हो जाएगा आपका इंटीग्रल tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएट होता है माइनस sin थीटा d थीटा. सिंपल. So this will become tan inverse tan theta by 2, because 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, 2 sin square theta by 2 upon 2 cos square theta by 2. 2 cut cos square by sin square by cos square tan square, square root में से बाहर आके tan into minus sin theta d theta. So I can take minus outside, यहाँ से बचा theta by 2, यहाँ से बचा sin theta d theta. You can take 2 also outside and then इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना. चलो एक सब में बता देता हूँ, बाद में नहीं बताऊंगा. -1/2 थीटा साइन थीटा डी थीटा. आई गेस आई शुड नॉट, है ना, बिकॉज वी डिड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम सो मेनी टाइम्स. सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत है आपको. यू कैन डेफिनेटली डू दिस. सिंपल. चलो देन गो फॉर 24 x स्क्वायर प्लस 1 into log x square plus 1 minus 2 log x and whole divided by x raised to 4. I की वैल्यू लिख दी और dx लिख दी. Now if you pay attention, तो log में देखो दो टर्म में subtraction है. So I can write them as x square plus 1 upon x square dx. Now you may be thinking x square कहाँ से आ गया? ये 2 है ना, पावर में ले जाओ तो log x स्क्वायर, देन सब्ट्रैक्शन यानी कि log x by y हो जाएगा. सो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. नाउ फर्दर क्या कर सकते हैं, तो क्या देखो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 है, तो कैन आई गिव x स्क्वायर इनसाइड, अंदर x स्क्वायर लाना, मतलब बाहर से तो x ही देना पड़ेगा. सो इट विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x क्यूब and log x square plus 1 upon x square dx. Correct. Still let's go for one more step which looks something like this, 1 plus 1 upon x square into 1 upon x cube and log 1 plus 1 upon x square dx, and I can easily let 1 plus 1 upon x equals to t. तो 1 तो 0 हो जाएगा,
वन अपॉन एक्स यानी माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो इंटीग्रल में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसकी जगह पे टी लिखा है, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर लेते हैं इंस्टेड ऑफ ओनली वन प्लस वन अपॉन एक्स, लेट मी से वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, so it will be minus 2 upon x cube dx equals to dt. So I am getting dx upon x cube as minus dt by 2. ये 1 upon x cube dx dt by 2 हो गया. So my integral is converted into square root of t into ये dx dt by 2 में चला जाएगा, ये होगा log t into minus dt by 2. I can take minus and 2 outside, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बचा क्या root t into log t. What you should think कि हमें करना चाहिए, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है तो by which method we can able to complete this particular problem which is question number 24. आपको क्या लगता है कौन सी मेथड से हमें ये फिनिश करना चाहिए? Again same thing, that theta sin theta root t log t है ना, this is the first function and this is second, so you can solve this again also by the help of integration by parts. I know मैं आपके लिए इतना छोड़ रहा हूँ, बट ये छोड़ना नहीं बोलते, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए देना बोलते हैं, है ना. दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम लिविंग इट फॉर यू, विच इज समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन गिविंग यू एज अ प्रैक्टिस, कि आप फॉर्मूला प्रैक्टिस करो. हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये डायरेक्टली एक बार में कभी कभी नहीं होता है. दो स्टूडेंट्स हु आर एबल टू डू इट वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी इफ यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ. हमेशा हर एक क्वेश्चन शुरू होने से पहले खुद से एक अटेम्प्ट दो. इफ यू आर नॉट एबल टू डू बाय योरसेल्फ देन सी के वीडियो में कैसे हो रहा है ना. और उसमें भी आप लोग यहीं तक पहुंच पाओगे, बिकॉज फ्रॉम हियर यू नीड टू यूटिलाइज द फॉर्मूला और आपको सॉल्व करना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर इन अ डिटेल्ड वे, आई डोंट थिंक सो कि यहां से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना इज अ बिगर टास्क. सिंपल. चलो, तो यहां पे आपके इनडेफिनिट के प्रॉब्लम होते हैं खत्म. नेक्स्ट सेक्शन है आपका इवेल्युएट करना डेफिनेट इंटीग्रल, जो है 25 से, है ना. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन 25. इट इज पाई बाय 2 टू पाई, पाई बाय 2 से पाई, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और उसके साथ ई रेस टू एक्स डी एक्स. अब ये कैसे करेंगे? तो देखो, मुझे यहाँ पे बाहर एक तो ई रेस टू एक्स दिख रहा है, चलो एक तो अच्छी बात है. अंदर क्या हम ऐसा एडजस्ट कर ले कि भाई किसी का डेरिवेटिव आजू बाजू में सेट हो जाए. इफ वी आर एबल टू डू दैट, सेम फॉर्मूला ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, बट लिमिट लगानी पड़ेगी. दैट्स द मेन आइडिया. करेक्ट. तो अगर हम इसमें सोचे भी तो कुछ ऐसा कर सकते हैं. लेट मी शो यू समथिंग लाइक दिस, कि अगर मेरा दिमाग जितना चल रहा है उतना, उसके हिसाब से 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स. ई रेस टू एक्स आगे लिख लिया ना. सो पाई बाई 2 से पाई, ई रेस टू एक्स यहाँ पे आएगा 1 प्लस यानी 2 कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 कट, एक एक कॉस कट, साइन बाई कॉस tan x बाई 2 dx. सो यस डेफिनेटली, है ना. बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे माइनस है और tan x बाई 2 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 हो जाएगा. वो जस्टिफाइबल है, लेकिन ये माइनस का क्या करोगे? तो यहाँ पे आपको बहुत बहुत केयरफुली समझना है कि कैसे लिखेंगे, कि इंटीग्रल पाई बाई 2 से पाई ई रेस टू एक्स माइनस tan x बाई 2. अब एक्चुअल में बीच में तो प्लस ही आता है ना. करेक्ट. और हमारे पास ये वाली टर्म प्लस है, तो फिर अब करें कैसे? हाउ आर वी सपोज टू जस्टिफाई दिस थिंग? अगर सपोज मान लो मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया आउटसाइड, है ना, तो इट विल बिकम tan x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx. अगर हमने कॉमन निकाला तो वो इस तरह से आपका बनेगा. लेकिन आगे कैसे करेंगे? हाउ आर वी सपोज टू प्रोसीड फर्दर? करेक्ट. तो मतलब यहाँ पे हमें
कुछ और सोचना चाहिए था रादर देन डूइंग लाइक दिस, क्योंकि 1/cos² से तो हमारा काम बन ही नहीं रहा है ना, करेक्ट। सो आई गेस जिस तरह से बुक में क्वेश्चन दिया है, वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस एंड इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल टू डू, नॉट एट ऑल, कभी नहीं हो सकता। द रीजन इज कि अगर ऊपर प्लस में होता ना देन इट कुड बी, बट ऊपर माइनस होने की वजह से आई डोंट थिंक सो वी कैन एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। क्यों? तो कि देखो यहाँ पे आप कुछ भी करो ये माइनस रहेगा और हमें फॉर्मूला के हिसाब से बीच में प्लस चाहिए चाहिए और चाहिए, सो दैट इज नॉट क्वाइट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो द मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कि यहाँ पे माइनस आएगा प्लस नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो, ये सब चेंज हो जाएगा। कैसे? तो जस्ट हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे हमें माइनस कॉस एक्स है और 1 माइनस कॉस एक्स यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा 1/2 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन साइन कट 2 कट कॉस बाई 2 कॉट एक्स बाई 2 dx। अब जस्टिफाइबल होगा क्योंकि tan का डेरिवेटिव पॉजिटिव सेक्स स्क्वायर ही आएगा, कॉट का नेगेटिव आ सकता है। अगर मान लो मैंने नेगेटिव कॉमन निकाल के बाहर ले लिया, सो दिस विल बिकम कॉट एक्स बाई 2 माइनस 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मैं इसमें ऐसे चाहूं तो लिख सकता हूं कन्वर्टिंग समथिंग लाइक दिस कि ये प्लस और ये ब्रैकेट में माइनस और फिर dx, क्योंकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है इंटू एक्स बाई 2 का 1/2, तो वो सेट हो जाएगा। लेकिन 10 में नेगेटिव कभी भी आना पॉसिबल नहीं है। आप माइनस माइनस स्प्लिट करोगे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अंदर माइनस दिया बाहर प्लस करने के लिए, यानी बीच में प्लस करने के लिए, तो 10 का डेरिवेटिव सेट कभी भी नेगेटिव नहीं आता, सेक्स स्क्वायर, करेक्ट। सो यहाँ पे वो छोटा सा ध्यान रखना है। प्लस इससे आगे अब आप लोग कर लोगे क्योंकि हमें पता है इसका डेरिवेटिव ये आता है, दैट इज फॉर श्योर। सो सेट हो गया, आपका आंसर आएगा e raised to x into cot x by 2 इन द लिमिट पाई बाई 2 to पाई विद अ नेगेटिव साइन, है ना। सब्स्टिट्यूट द लिमिट एंड यू विल गेट इट द सॉल्यूशन। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, एकदम सिंपल सोबर सी बात है, डोंट वरी अबाउट दिस, करेक्ट। चलो लेट्स गो फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज आई गेस 26। ये था 25th वन। 26 अगेन इज अ वेरी वेरी नाइस प्रॉब्लम। 0 से पाई बाय 4 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस रेस टू 4x प्लस साइन रेस टू 4x dx। अब करे तो करे क्या? हाउ कैन वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम? अरे ये तो डिफिकल्ट है थोड़ा। मतलब अगर ऊपर मैंने साइन 2x कर भी दिया एक बार जस्ट इन केस, तो फिर नीचे से कुछ अच्छे से एडजस्ट नहीं होगा। एक काम करते हैं ना कि कॉस हटा ही देते है ना, तो हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉस रेस टू 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पे बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स और यहां बचेगा 1 प्लस tan रेस टू 4x dx। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसको लिखेंगे कैसे, तो कि साइन बाई एक कॉस लो तो tan x, बचे 2 कॉस तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर x और 1 प्लस tan रेस टू 4x dx। अब ये देख के आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, अगर ये बच्चे एट अ टाइम 100 स्टूडेंट्स देख रहे हैं एट अ टाइम, 99% ऑफ यू हैव थिंक दैट कि चलो फ्लैट कर लो tan x इक्वल्स टू t, यानी कि sec स्क्वायर उसका डेरिवेटिव आ गया, t की जगह पे tan x की जगह पे t लिख देंगे। बट we'll not do that. We can do something like this. Let tan square t, sorry, tan square x equals to t। क्यों? तो कि tan square x का 2 tan x और tan x का sec square x dx equals to dt। When x 0 तो t भी 0 और x पाई बाई 4 तो tan पाई बाई 4 1, t का पावर में स्क्वायर 1 ही आएगा। सो योर इंटीग्रल चेंजेस फ्रॉम 0 to 1। 2 हमें इधर ले लेना, tan x sec square x की जगह पे dt by 2 डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर। नाउ आई नो यू कैन डू इट। ये तो सीधी सीधी फॉर्मूला है भाई, 1/2 बाहर निकाल दो, dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर 1 अपॉन tan इनवर्स x बाई a,
लिमिट 0 to 1. नो नीड टू बैक सब्सटीट्यूट ओवर हियर क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर ली है. अगर आप लिमिट चेंज नहीं करोगे तो आपको बैक सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा और उसके बाद लिमिट रखनी पड़ेगी. बट डोंट प्रीफर दैट मेथड. दिस इज मच इजी एंड दिस इज हाउ यू कैन ऑलवेज सॉल्व. Am I clear? You can pause the video till this particular point and note it down.